Good, 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 good. Nice. अब ठीक. Now everything is okay. आप join कर लेंगे. So, how was everything with all of you? Deepak, Deepak, how was everything? कैसा रहा सब कुछ? Swati, how was everything? Good, sir. Very good. But you know, here in the end of July, something wrong happened in Udaipur, as you know. So that's why the internet was, they just, closed internet services. So that's why we could not take the class, the last class. तो आज हमारी last class होगी, हम थोड़ी बात करेंगे, and let's see, let the others join. और did you practice करी थी आपने? Swati, Yes, sir. you practiced or you left? Left. Left? And Deepak, No, sir. Left. why? क्यों भाई? Hello? What was the reason? कोई तो जवाब दो. Either speak in Hindi or in English. Swati, why you left the practice? Hello? You listening to me, both of you? आप दोनों मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हेलो? Yes, sir. तुम कुछ बोलो तो सही भाई. इट्स वन वे ट्रैफिक. प्रैक्टिस कैसे छूट गई? क्लास खत्म हो गई इस वजह से? Yes, sir. ओके. स्वाति, आपके साथ क्या रहा? व्हाट वाज विद यू? सर मैं अपना बिजी हो गई. अच्छा, आपने सोचा होगा नोट्स तो मिल गए, हम तो फिर कभी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसा कुछ हो सकता? नहीं ऐसा नहीं सर. ओके. घर में बिजी हो गए बच्चों के साथ, लाइक दैट. Yes, sir. यू बिलोंग टू राजस्थान? आप राजस्थान के हैं क्या? No, sir. And UP. झांसी. Oh, you from Jhansi and your husband is from? झांसी. Same. Yes, sir. अच्छा, very lucky. Same place. चलिए, that's a good thing. So I thought that you were from Rajasthan. Okay, okay. तो क्या कुछ रहा? What you did? Sorry, sir. क्या कुछ किया 4-5 दिनों में? सर मेरे बेटे दोनों ठीक नहीं थे. डॉक्टर क्या लेके गई. मैं ठीक नहीं थी. मैं गई. मेरे हस्बैंड इंडिया के बाहर गए. वो पैकिंग, ये सब चल रहा था. कौन से कंट्री गए वो? जर्मनी. जर्मनी? स्टुटगार्ट. Stuttgart. Okay. I seen Frankfurt in Germany. फ्रैंकफर्ट देखा है मैंने जर्मनी में. तो वो ही इज इन जर्मन कंपनी. Yes, sir. एंड व्हाट इज ही डूइंग? Mercedes-Benz. He is working Mercedes-Benz. बैंक? Benz. Mercedes-Benz. ओ, विद मर्सिडीज बैंड्स. ओ, तो उनका क्या काम है? व्हाट इज हिज वर्क? He is manager, sir. Program manager. He knows German? Yes, sir. You know German? Little bit, sir. A bit. A little bit. Okay, that's a good thing. That's why you know Devkaran sir. Yes, sir. Okay, so Devkaran sir taught your husband? Yes, sir. His Oh. best friend. Both are. Oh, they are best friends. That's a good thing. Good. Okay, that's a good thing. Okay. And Deepak? Hello, Deepak. Yes, sir.
Yes, sir. So you are giving your examinations? आपके एग्जाम चल रहे हैं? No, sir. हो गए एग्जाम्स? सर एग्जाम नहीं थी। आपने अभी क्या किया है? सर ग्रेजुएशन कर लिया। हो गया, डन, you done graduation Yes, sir. and you are doing German. Yes, sir. ठीक है, you are in Jaipur or out of Jaipur? चिड़ावा? No, sir. मनौरपुर, जयपुर में। अच्छा, आप तो मनोहरपुर से हैं, सॉरी, एक दीपक चिड़ावा से था। ओके, यू आर फ्रॉम मनोहरपुर। अभी मनोहरपुर में आप? जी सर। ओके ओके। तो ऐसा है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है ना, तो ट्राई टू डू द प्रैक्टिस। जैसे एक सिंपल सी बात होती है, सपोज हम कुछ सीखते हैं, वी लर्न, मान लीजिए हम पूजा करते हैं, है ना, तो उसमें कुछ मंत्रों का एन्चेंटिंग करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या हरे कृष्ण हरे राम, तो रोज़ाना वैसे ही करते हैं। तो ऐसे जो क्लूज़ आपको मिले हैं, तो कोशिश आप करें कि वैसी प्रैक्टिस करने की। सो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ गुड प्रैक्टिस। फिर आपकी स्पीकिंग भी डेवलप हो जाएगी। ये सपोज अभी मैंने स्वाति से थोड़ी बहुत बात करी कि व्हाट हैपेंड इन अ वीक्स टाइम और 7-8 days, क्या हुआ, तो फिर स्वाति ने कहा कि I was not feeling good. Hello. Who joined? Deepak or Jyoti? गुड इवनिंग सर। Good evening. Hello. Good evening, sir. Good evening, Parik, Jai Jinend, Parki, and Good evening, sir. Mohit. Yes, sir. Good evening. Good evening, good evening. Everything is okay? Okay, sir. And who is this? Keri baby? Hello. It is दीपक। Deepak from Chidava. यस सर। Okay. So how the things have been with you? कैसा रहा सबके साथ 8-10 दिनों में? दीपक from Chidava. यस सर। क्या रहा 8-10 दिन में? Did you do the practice? नो सर। Very good. And Parki beta, you practiced beta? Yes, sir, I do practice. I did practice. I did practice. Very good. Okay. And Mohit, you did practice? No, sir. No, sir. Okay. Okay. So again, I just would like to say, this is our last class, but still do the practice. And if there is any help from my side you need, I am always there to help you. चलिए, आज हम थोड़ी सी कुछ बात करेंगे। जो कुछ भी क्लूज़ हमने पढ़ लिए हैं, उसको आप वापस पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी। तो हम एक बार रिवाइज कर लें चीज़ों को, और फिर लास्ट में कुछ मैं आपको, आई वुड डिस्कस 10 पॉइंट्स फॉर अ गुड पर्सनैलिटी, कि क्या क्या हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए अच्छी पर्सनैलिटी के लिए। ओके, इज़ देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन, कि कोई सा भी ऐसा क्लू वर्ड जिसको रिपीट करना आप चाहते हैं? स्वाति, Yes, sir. एनी टॉपिक बेटा? Yes, sir. I have, sir. Has. हैज़, कौन सा हैज़? विच हैज़? Only has. I will use verb की third form, sir. अच्छा, वो वाला है। अच्छा, हैज़ एन इट। ओके, ये हैज़ और हैव का यूज़ हम कब करते हैं? जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें यूज़ करते हैं।
और आपको ज़्यादा बस एक बात याद रखो कि जहाँ भी चुका है का भाव आ जाए, चुका है या फिर या है, ये दो पहचान आज आपको मिलती है तो फिर आप हैज़ और हैव का यूज़ कर सकते। और यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। फर्स्ट टॉक अबाउट पर्सन, हैज़ कम्स विद सिंगुलर एंड दिस कम्स विद प्लूरल। देन सेकंड प्लेस पर आता है हैज़ और हैव, and then comes we third, and in the last comes object. इस तरह से सेंटेंसेस हम बनाते हैं। जैसे अभी मेरा सेंटेंस था, हैव यू डन प्रैक्टिस, क्या आप प्रैक्टिस कर चुके हो। हैव यू लिसन्ड टू मी प्रॉपरली, क्या आपने मुझे ध्यान से सुना है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इसी में क्वेश्चन भी हो सकता है, इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। WH क्वेश्चन बन जाएंगे, यस और नो वाले इंटरोगेटिव्स बन जाएंगे। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हैज़ और हैव। जैसे मैं अपने बच्चों की देखभाल कर चुकी हूँ, आई हैव टेकन केयर ऑफ माई किड्स। मेरे हस्बैंड जर्मनी जा चुके हैं, माई हबी हैज़ गॉन टू जर्मनी। हस्बैंड को हबी भी कह देते हैं शॉर्ट में। तो ऐसे, और जो कुछ आप देखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने आपको जो सिखाया है उसके दो पैटर्न है। एक तो क्लू वर्ड को सीख लीजिए, देन आफ्टर whatever you see all around, उन सब को आप सेंटेंस के फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं। सपोज इफ यू सी द चेयर, isn't it, तो चेयर के लिए बना सकते हैं आई हैव sat on the chair, मैं चेयर पर बैठ चुका हूँ। आई हैव pushed the chair, मैं चेयर को पुश कर चुका हूँ। जो कुछ भी एक्शन हम चेयर के साथ कर सकते हैं। और कुछ जो दिखाई आपको देता है, AC है, एनीथिंग एल्स इन द रूम और किचन, सो यू कैन यूज द सेंटेंसेस। तो उस तरह से आप बना सकते हैं हैज़ और हैव का। और मेन आपको ध्यान जो रखना है वो दैट इज चुका है और या है का सेंस आना चाहिए उसमें। दैट इज दैट। या तो डिड में भी आता ना, या बेटा मैंने क्या कहा, या है, या के साथ है जुड़ना चाहिए। है यदि हटा दिया आपने तो वो पास्ट हो गया, वो चला गया, लाइक दैट। तो ये भी एक पहचान है। या है में भी प्रेजेंट परफेक्ट ही बनता है। यू गॉट इट और नॉट? जैसे सर, आई हैव डन माई कोर्स, आई हैव रिवाइज्ड ऑल द टॉपिक्स, आई हैव डन होमवर्क, मैं आपसे मिल चुका हूँ, आई हैव मेट यू। इस तरह से ये है प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव का यूज। अंडरस्टूड मी स्वाति? यस। सो यू कैन मेक अ फ्यू सेंटेंसेस, आप बना लीजिए, देन मैं पूछता हूँ आपसे। यस, एनीवन एल्स, एनी प्रॉब्लम? यस। और कुछ? दीपक फ्रॉम मनोहरपुर, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? No, sir. Very good. And Deepak from Chidava. Mohit? Sir, वो बैक का बताना, बैक कैसे यूज करते हैं? I'm not understanding. बैक का बताना, बैक कैसे यूज करते हैं? द कैसे यूज करते हैं? Yes, sir. अच्छा, द का बहुत सिंपल सा ट्रिक है। ज्यादातर हम किसी चीजों की बात करते हैं तो द यूज कर लेते हैं। जैसे हमने कहा दरवाजा बंद करो, तो जिसको भी कह रहे हैं उसको पता है कौन सा दरवाजा है, तो क्लोज द डोर। चीजें जो होती हैं, ऑब्जेक्ट्स, उनमें द आ जाता है।
गिव मी द बॉटल, मुझे बॉटल दे दीजिए। ऑपरेट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को चालू कीजिए। स्विच ऑन द फैन। तो वस्तुओं के पहले जनरली द आता है जिसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट द आता है कुछ ऐसी चीजें, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनमें द आता है। द पोस्ट के पहले द आता है, जो मैंने सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। रिवर्स के पहले आता है। बड़ी जो हमारे ग्रंथ हैं, रिलीजियस बुक्स, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके पहले भी आता है। जैसे मैं रामायण पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड द रामायणा। अभी स्वाति ने हैज़ हैव पूछा, उसी के सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव रेड द रामायणा। से ऐसा नो, तो दे के कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप एक बार वापस देख लीजिए, आपको आ जाएगा। यस। एंड दीपक फ्रॉम चिड़ावा, पारखी, एनी प्रॉब्लम बेटा? Sir, I want to increase my vocabulary skills, but I'm unable to recall the word meanings. Oh, that What is should I do? okay. That is a good point। इसके लिए तो फिर अलग से आपको बताना पड़ेगा बेटा, बट फिर भी चलो मैं कुछ कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है, कि वर्ड्स को याद कैसे करें। आप में से कौन है जिसको याद हो जाते हैं वर्ड्स? किसको याद हो जाते हैं वर्ड्स, या भूल जाते हैं या कुछ दिनों बाद? सर मैं भूल जाती हूँ। आप भूल जाते हैं? दीपक? Yes, sir. एंड दीपक फ्रॉम मनोहरपुर, Yes, sir. आप भी भूल जाते हो? मोहित? पारखी? Sir, I don't. आप भी भूल जाते हो? अच्छा, हम भूलते क्यों हैं तो फिर? जैसे सपोज करो आपने 20 वर्ड्स पढ़े, आज नए वर्ड्स पढ़ लिए, तो आप भूलते क्यों उसको? क्या कारण होता है? हम जो पढ़ने का जो तरीका है ना, उसकी वजह से भूल जाते हैं। और जनरली हम इसी तरह से पढ़ते हैं, हर वर्ड का एक पिक्चर बनाओ, कुछ न कुछ, तो आपको याद रहेंगी कुछ बातें। जैसे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैंने कभी वर्ड्स को बताया क्या कि कैसे लर्न करना है? कभी बात चली है? Did I tell you earlier? Yes, sir, but link it with something or something. Like कौन से वर्ड? Which word? मैंने शायद मिसलेनियस, सर्विलेंस, ये कुछ वर्ड बताए होंगे शायद पहले। हाँ, yes, sir, miscellaneous. मिसलेनियस बताया और सर्विलेंस भी बताया होगा। चलो वापस से मैं कोशिश करता हूँ कुछ वर्ड्स की बताना। एक्चुअल में ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करो, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिसलेनियस वर्ड? मिसलेनियस का मीनिंग क्या होता है? विशेष खर्चे। हाँ, अलग अलग विविध प्रकार के खर्चे, मिसलेनियस, डिफरेंट। से सुनो, तो मिसलेनियस की स्पेलिंग मोहित मिसलेनियस, एनीवन ऑफ यू? पारखी के अलावा किसी और को? पारखी नहीं, स्वाति? यस सर। मिसलेनियस की स्पेलिंग क्या होगी बेटा? MIC। वेरी गुड, रॉन्ग। एक बार किसी बच्ची ने मेरे से पूछा, गवर्नमेंट स्कूल में थी, 10th क्लास 9th क्लास की बच्ची थी, तो बोलती सर कि हमको स्पेलिंग से याद नहीं होती है। तो मैंने कहा बेटा कौन सी स्पेलिंग पूछना है? तो बोले सर टेक्नोलॉजी कैसे याद करें? तो मैं क्या कुछ ट्रिक्स यूज़ करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा बेटा, सपोज इफ़ आई गिव यू अ बुक, मैं आपको कोई एक किताब देता हूँ, तो मैं हिंदी में क्या बोलूँगा? लोजी, ठीक है? तो बोले हाँ, ओके सर। तो मैंने कहा लोजी की स्पेलिंग कोई भी बना सकता है, लोजी, ओके। तो मैंने कहा लोजी की स्पेलिंग बनाओ, LOGY। फिर आप मेरे को कहते हैं कि नो, किताब मैं नहीं लूँगी, तो आपने कहा नो।
देन आई सेड TECH, ये याद कर लो और सबको जोड़ दो तो उल्टी स्पेलिंग याद होगी। टेक्नोलॉजी, बच्ची इतनी राजी हो गई। तो वर्ड्स में कुछ ना कुछ छिपा रहता है, आपको उसको देखना पड़ेगा। तो मैं कुछ वर्ड्स आपको बता देता हूँ सो दैट यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड। जैसे मिसलेनियस, मिसलेनियस का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इमेजिन करना पड़ेगा एन अनमैरिड गर्ल, एंड द स्पेलिंग ऑफ एन अनमैरिड गर्ल इज मिस। से सुनो, एक अनमैरिड गर्ल है एंड द नेम ऑफ द गर्ल इज सेला, तो मिस सेला, ठीक है। देन NEOUS, अब इसमें से आप क्या करेंगे, एक S को क्रॉस कर देंगे। नाउ यू कैन रीड द स्पेलिंग MISCELLANEOUS, मिसलेनियस, ये स्पेलिंग है। यस और नो? तो मिसलेनियस आप लिख लीजिए सभी बच्चे। टेक्नोलॉजी एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट, अलग, विविध, हिंदी में लिख सकते हैं विविध। ओके, थर्ड वर्ड इज सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब आप जानते हैं, ड्रोन कैमरा होते हैं, वो ऊपर से निगरानी करते हैं, तो उसको कहते हैं सर्विलेंस। और अपने जो कैमरे लगे होते हैं क्लासरूम्स में, ये इसको भी सर्विलेंस कैमरा कह सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ सर्विलेंस मीन्स निगरानी करना, टू गार्ड, ठीक है। तो सर्विलेंस की स्पेलिंग कोई बता सकता है आप में से मेरे को, पारखी के अलावा? दीपक, मोहित, स्वाति? सर्विलेंस। एनीवन एल्स? बताओ। सर्विलेंस S URVEILLANCE, ठीक है। लेकिन इसको सिखाने के लिए पहले एक वर्ड सीख, जैसे आज बच्चों का कि आज आपको एक वर्ड सिखाता हूं, है VEIL। ये वर्ड क्या है? इसको कहते हैं वेल। वेल यानी होता है घूंघट निकाल लेना, पर्दा कर लेना। तो जैसे वेल एक नया वर्ड सीखा बच्चों ने, तो इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं, सर द वेल सिस्टम इन राजस्थान इज वेरी कॉमन। राजस्थान में जो घूंघट प्रथा है वो बहुत कॉमन है। तो वेल से एक आपको नया वर्ड और मिल गया, घूंघट। से यस और नो? अब इस वेल वर्ड को कोई याद कर सकता है, कोई ट्रिक लगा सकता है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए? वेल, VEIL, बताओ। यस, पारखी, स्वाति, मोहित, कोई ट्रिक याद आ रही है कि सर इससे हमको हमेशा याद है? इनकी क्या वर्ड्स की पिक्चर बनाना पड़ेगा आपको एक, कोई बना सकता है? इज देयर एनीवन? मैं बनाता हूं। जैसे ही मान लीजिए कोई दुल्हन आती है और इन लॉज उसके ससुराल वाले कहते हैं तुम्हें घूंघट निकालना पड़ेगा, तो घूंघट को कहते हैं वेल, ठीक है। तो वो लड़की कहती है कि यदि आप घूंघट निकलवाओगे तो मैं वेल कुएं में कूद जाऊंगी। तो वेल 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 वेल, और वो पिक्चर बन गई आपके दिमाग में। कुएं से वेल जोड़ सकते हो, और घूंघट को इमेजिन करना पड़ेगा, somebody is covering the face, somebody is veiling the face। वेल यानी भी पर्दा कर लेना। तो जैसे ही पर्दा करते हैं तो वो नाराज हो जाती है और कुएं में कूदने की धमकी देती है, ठीक है। तो वेल यानी घूंघट करना। तो ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा। ओके,
तो फिर आगे क्या लिखना है, एक सर आते हैं क्लास में, सर, और वो घूंघट निकाल लेते हैं. इमेजिन करो, जस्ट सर इज कमिंग एंड ही इज वेलिंग. ओके, फिर वो लेंस से पढ़ा देते हैं. लेंस की स्पेलिंग कोई भी बना सकता है, LANCE. से सुनो, तो सर ने घूंघट निकाला, सर और घूंघट निकाला और लेंस से पढ़ाने लग गए. ठीक है, तो ये होगी सर्विलेंस की स्पेलिंग. लेकिन आई जो है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यू. तो ये यू करेक्ट है बस. लेकिन आप इसको पिक्चर बना सकते हैं और हमेशा के लिए आपको स्पेलिंग याद रहेगी, सर्विलेंस, SURVEILLANC, सर्विलेंस, यानी निगरानी करना, टू गार्ड. राइट द वर्ड, और हिंदी भी लिख लीजिए इसकी, निगरानी करना. Yes, done everybody? Hello? Yes, sir. Yes. सबने लिख लिया, समझ में आ गया? कभी नहीं भूलेंगे ना? क्या नहीं भूलेंगे? दीपक, क्या नहीं भूलोगे? स्वाति, क्या नहीं भूलोगे बेटा? स्वाति, सारे लेटर सर. कि ऐसे सर हमने देखे जो घूंघट निकाल के पढ़ाते हैं, वो सर कभी भूल ही नहीं सकते हम. तो सर, घूंघट और लेंस, ये लो, सर्विलेंस. इमेज बनानी पड़ेगी आपको हर वर्ड की, तो आपको वर्ड्स याद होने शुरू हो जाएंगे. और हमारा ब्रेन क्या करता है, बार बार यूज़ करता है ना, तो फिर वो बातें याद हो जाती. तो पहले तो पिक्चर बनाओ, देन आफ्टर उसको यूज़ करो. से यस और नो? ओके, तो 3 हो गए, और लिखिए. What is this? Abandon. Abandon का मीनिंग कोई बता सकता है मेरे को? Is there anyone who can tell me the meaning of this word abandon? रोक लगा देना. रोक लगा देना. Abandon. क्या लगा देना? अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग कर देना, टू लीव. हिंदी में आप लिख सकते हैं त्याग कर देना या छोड़ देना. से यस और नो? अब इसको कैसे याद करेंगे, कोई आइडिया है किसी बच्चों को? जैसे मान लीजिए आपको बांध दिया है ना, तो ये हो गया अब बंधन, है ना. तो अब बंधन, और जैसे ही बांधा आपने उसको तोड़ दिया, यानी छोड़ दिया, लीव. तो अब बंधन को छोड़ दिया, तो अबैंडन, अब बंधन, अबैंडन, अब बंधन. तो अबैंडन जैसे ही आएगा तो ऐसे मानो आपको रस्सी से किसी ने बांध दिया, और देन आपने अपनी हनुमान जी को याद किया और रस्सी को तोड़ दिया आपने. तो अबैंडन यानी टू लीव, छोड़ देना. तो आपको याद हो गया वर्ड. से यस और नो? इसको हिंदी में लिख लेना, त्याग देना. जैसे आई हैव अबैंडन्ड माई बैड हैबिट्स, मैंने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया है, छोड़ चुका हूँ.
और उसको लेफ्ट से भी कर सकते हो। आई हैव लेफ्ट माई बैड हैबिट्स, मैंने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया। से यस और नो? यस। अब आप बोलिए कोई वर्ड दिखे, मैं कोशिश करता हूँ कोई ट्रिक निकालने की, कोई वर्ड बताइए। एनीवन ऑफ यू? यस दीपक, मनोहरपुर। सर अनार को क्या बोलती है? किसको? अनार। अनार? यस सर। अनार को तो पोमेग्रेनेट बोलते हैं। तो सर इसकी बता दो। दिस इज ई पोमेग्रेनेट। अब अनार को कैसे याद करें? अच्छा, एक ग्रेनेट जो वर्ड है, ग्रेनाइट पत्थर से जुड़ सकता है मोहित? बल्ब से भी जुड़ सकता है सर। किससे? बल्ब। बल्ब? बल्ब बल्ब सर बॉम्ब। बॉम्ब? हाँ, पॉम बॉम्ब, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो पॉम बॉम्ब हो गया मान लीजिए। और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक पत्थर होता है ना, जो शाइनिंग मार्बल। यस सर। तो जैसे जो बॉम्ब्स हैं वो ग्रेनाइट पत्थर के ऊपर फट रहे हैं, है ना। और वो बॉम्ब्स जो है वो कौन से हैं? जो हम दिवाली पर अनार चलाते हैं ना, वो तो अनार उससे ले सकते हैं आप। तो पोमेग्रेनेट, तो बॉम्ब ग्रेनेट, ग्रेनाइट, तो वो अनार उस पर फट रहे हैं, तो पोमेग्रेनेट यानी अनार। तो आपको पिक्चर उसका बनाना ही पड़ेगा। से यस और नो? नेक्स्ट और बताइए। Excuse me, sir. Spelling of pomegranate is GRANATE. GRANATE. Yes, sir. Oh, so I'm sorry. हाँ, pomegranate. Yes. Thank you. Next is anyone else? और कोई spelling? Number 6. क्या लिखा मैंने? What I've written? Obscure. Anyone can read it? Obscure. Sir, Obscure का मतलब होता है छिपा हुआ, hidden. हिंदी भी लिख लीजिए, hidden. Hidden. Obscure means hidden, छिपा हुआ। अब इसको कैसे याद करें बताओ? मैंने जस्ट अभी इसको सोचा है, ऑब्सक्योर नहीं, अब इसका इलाज करो, अब इसको क्योर करो, बहुत दिन से छिपा हुआ था ये, अब
इसका क्योर, अब्स का क्योर, अब्स ऑप्स क्योर, तो काफ़ी क्लोज हो गया। अब इसका इलाज क्यों करो? ये बहुत दिनों से छिपा हुआ घूम रहा था, छिपा हुआ था, पता ही नहीं चला, तो बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई इसकी। अब इसको क्योर कर दो, ऑब्सक्योर। जस्ट इमेजिन इसी तरह से कोई डॉक्टर के सामने कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, तो अब वो कह रहा है अब इसको क्योर कर दो, अब इसको ठीक कर दो, तो ऑब्सक्योर यानी छिपा हुआ। जैसे ये हम कभी कब यूज़ करते हैं, कोई छिपा हुआ खजाना हो, इंटेलिजेंट हो कोई, अरे यू आर एन ऑब्सक्योर इंटेलिजेंट, योर इंटेलिजेंस वॉज ऑब्सक्योर, आपकी इंटेलिजेंस तो छुपी हुई थी। ऑब्सक्योर ट्रेजर, छुपा हुआ खजाना, ऑब्सक्योर मनी, छिपा हुआ पैसा। तो ऑब्सक्योर का मतलब है छिपा हुआ। अंडरस्टूड एवरीबडी? Yes, sir. तो ऐसे बेटा पिक्चर देना पड़ेगा फॉर्म्स को, इतना इजी नहीं है, क्योंकि हम कितना याद करेंगे, जितनी मैक्सिमम पिक्चर्स बना सकते हैं उतनी याद कर सकते हैं। Sir, exaggerate. Exaggerate, spelling EXAGG ERAT, exaggerate. Is this correct और कहीं कुछ चेंज होगा इसमें? Exaggerate, थोड़ा स्पेलिंग में लेट मी सी एक बार। That is correct. हाँ, Correct, sir. oh It is correct. Exact. जस्ट सोचो क्या बना सकते हैं। और एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा करके बोल देना, कह देना। जैसे हम कहते हैं ज़्यादा मैटर को आप एग्जैजरेट मत करो, ये बात नहीं थी, है ना? तो एग्जैजरेट का मतलब है Is there any idea is coming to your mind? Some ideas coming to my mind. Exaggerate. So something like X के साथ agreement हुआ particular rate. इसको दूसरी तरह से आ रहा है मेरे को, जैसे एग की रेट है ना, और ये एग आपका क्या हो गया, बहुत पुराना हो गया। एक्स का मतलब अपन मानते हैं ना पुराना, है ना, एक्स प्रिंसिपल। तो ये जो आपका जो एक्स एग हो गया, उसकी जो आप रेट है वो बहुत बढ़ाकर बता रहे, जबकि ये तो पुराना है। तो एक्स एग रेट, एग्जैजरेट, और उसकी रेट आपने क्या बताई है, बहुत ज़्यादा बढ़ा करके, तो इसका मतलब एग्जैजरेट। तो ऐसे हो सकता है, इमेजिन करना पड़ेगा एग को, और वो भी एग कौन सा होगा, पुराना एग होगा। उसकी रेट क्या बताई थी उसने, ज़्यादा, तो एग्जैजरेट। से सुनो, इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं। I have written 3 words and the sound is the same.
सबकी आवाज़ एक है लेकिन सबकी मीनिंग डिफरेंट है। कोई बता सकता है? रेन बारिश, बारिश, और दूसरा रेन स्वाति। नो आइडिया सर। व्हाट एन आइडिया। जब कोई कहता है नो आइडिया, व्हाट एन आइडिया, वाह, गुड। एंड दिस रेन पारखी, Sir, शासन. देखो ये रेन तो होता है शासन काल, है ना। जैसे अकबर का शासन काल, द रेन ऑफ अकबर। शिवाजी का शासन काल, द रेन ऑफ शिवाजी was great। और ये रेन होता है लगाम, घोड़े की या जानवरों की लगाम होती है, उसको रेन कहते हैं। से सुनो, तो इन सबको लिख लीजिए, बारिश, शासनकाल और लगाम। अब इसका कैसे बना सकते हैं लगाम का? होल्ड द रेन टाइटली, लगाम को कस के पकड़ो। होल्ड द रेन टाइटली। मान लीजिए आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, तो एक ही तरह के वर्ड्स हैं बट डिफरेंट मीनिंग। गॉट इट? जैसे आई डोंट लाइक द रेन ऑफ औरंगजेब, या नोबडी लाइक्स द रेन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल किसी को पसंद नहीं आता है। से यस और नो? तो ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड सडनली मुझे याद आ गया। ओके, स्पेलिंग का आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ऑलमोस्ट RAIN इज़ वेरी कॉमन, और ये दोनों हैं। तो जी जिसमें होगा उसमें होगा गवर्नेंस यानी शासन, तो जी से, और जी हटा दोगे तो लगाम हो जाएगी। Can you tell me the meaning of this word? Nibble. काटना या कुतरना। जो स्क्विरल होती है ना, गिलहरी, और रैबिट, इवन रैट्स, ये सब निबल करते हैं खाने को, ऐसे थोड़ा थोड़ा बाइट करते हैं, तो उसको कहते हैं निबल। अब आपको याद कैसे रखना पड़ेगा? कैसे याद रखना पड़ेगा? Who has joined? किसने ज्वाइन किया अभी? हेलो, यस। निबल को कैसे याद रखें? कोई आइडिया है किसी के पास? बताओ, सोचो, मैं बताता हूँ फिर देन। Yes, any idea? बताओ भाई, कुछ तो ये वर्ड है ना, कुछ हिंट दे रहा है आपको। दीपक, मोहित, पारखी, स्वाति, इज देयर एनी आइडिया? नो सर। नो आइडिया? पारखी, स्वाति? सर निब, एवल निब। निब, पेन का निब होता है ना,
जी 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 वही। तो बता, आ गया ना निब, ये अपने आप साफ ही बता रहा है। जब आप किसी गिलहरी के, स्क्विरल के निब चुबाते हैं पेन की, तो वो कुतरना शुरू कर देती है। जैसे इमेजिन कर लो, आप निब उसको पियर्स कर रहे हैं, चुभा रहे हैं, चुबाने को पियर्स कहते हैं। तो वो क्या करना शुरू करती है, कुछ खाना शुरू कर देती है, निबल, कुतरना शुरू। तो निब, निबल, है ना। और निबल इससे भी हो सकता है इससे भी हो सकता है निबल। तो जैसे ही आपने निब को चुबाया उसके, तो वो कुतरना शुरू कर दी। और लेकिन ये पिक्चर याद रखनी पड़ेगी, स्क्विरल और उसको निब चुबाया, ठीक है। और निबल इससे भी बन सकता है, निडल से भी बन सकता है। निडल यानी सुई, निडल, निबल, निडल, निबल। तो ऐसे करके जैसे ही आप इंजेक्शन लगाएंगे, नीडल लगाएंगे, तो कुतरना शुरू कर देगी। तो दिस इज एन इमेज, तो आपको याद रहेगा हमेशा। Brisk. What is the meaning of brisk? Brisk का मतलब होता है थोड़ा तेजी से, जल्दी जल्दी, क्विकली, a little bit fast, ठीक है। लेकिन अब इसको याद कैसे रखोगे कि केवल बी ही है जो रिस्क लेता है और जल्दी जल्दी रिस्क लेता है। तो a little bit quickly और fast, तो brisk. Got it? So this is the way to learn the spellings. इस तरह से आप स्पेलिंग्स को याद कर सकते हैं। Understood everybody? तो आप just see the word और कोशिश करें कि उसमें क्या हिंट दे रहा है वो। You got it? और लास्ट में मैं थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और कुछ मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, और इफ़ यू वांट यू कैन राइट कि हमारे अंदर क्या क्या अच्छे कैरेक्टर्स होने चाहिए इन ए गुड ह्यूमन बीइंग। द फर्स्ट कैरेक्टर इज़ लिसन केयरफुली, किसी की बात को आप ध्यान से सुने। तो ये आप हमारे अंदर कैरेक्टर होना चाहिए, लिसन केयरफुली। सेकंड, वेट फॉर योर टर्न, अपनी जब बारी आती है तो उसका इंतज़ार करें, तो वेट फॉर योर टर्न। थर्ड, यूज़ पोलाइट वर्ड्स, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। नेक्स्ट, कॉपरेट अदर्स, दूसरों के साथ सहयोग भी करें, कॉपरेट अदर्स। नंबर 5 इज शो योर एप्रिसिएशन, किसी की तारीफ भी करें। इफ समवन इज डूइंग गुड वर्क एंड अप्रिशिएट हिम, तो आप उसको तारीफ भी करें। नंबर 6, गिव कॉम्प्लीमेंट्स, यदि अच्छा काम करता है उसको कॉम्प्लीमेंट्स भी दें, उसको शाबाशी भी दें, बधाई भी दें। 7, राइट बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल राइट होनी चाहिए जहाँ भी हम होते हैं। रीड राइट बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ें। मीट राइट पीपल, अच्छे लोगों से मिलें। एंड द लास्ट वन इज राइट ड्रेसिंग सेंस, कि जो भी ओकेजन होता है उसके हिसाब से हमको ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखना चाहिए। ऐसा नहीं रणबीर कपूर की जैसे कैसे भी कपड़े पहन लिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम? यस पूछो, आस्क मी। सर, ये Yes. क्लास आप अभी स्टार्ट करेंगे ना? वो तो अभी सर से बात करेंगे, फिर वी कैन स्टार्ट इट, लेट्स सी। ठीक है बेटा? यस सर, प्लीज इन्फॉर्म मी। और कोई? Is there anyone or any question? दीपक, मोहित, कोई सवाल बेटा?
Okay. So thank you very much. Whenever there is next class, then we will inform you. लेकिन सबसे पहली शर्त है do the practice. ये सारे क्लू वर्ड्स ही आगे आते हैं, isn't it? So thank you very much and see you next time very soon. Okay, bye. बाय सर। Bye beta. All the best. Do the practice.